بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے ہیں اور ہمیں یہ موقع دے رہے ہیں کہ ہم اپنی بات آپ کی وساطت سے قوم کو پہنچائیں۔ آج یہاں پر جمعیت علماء اسلام صوبہ پنجاب کی جنرل کونسل کا اجلاس تھا۔ تمام نمائندے آئے ہوئے تھے اور ایک بھرپور عزم کے ساتھ فیصلہ کیا گیا کہ 16 اکتوبر کو جو پہلا جلسہ گوجرانوالہ میں ہوگا اس کو کامیاب بنانے کے لیے بھرپور کوشش کی جائے گی، پبلک میں آگاہی پیدا کی جائے گی اور ایک عوامی قوت کا مظاہرہ ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس ملک کی حفاظت، اس ملک کی معاشی ترقی، اس ملک میں عوام کی خوشحالی، یہ ایک ایسا ہمارا ہدف ہے کہ ان حالات میں جب موجودہ حکومت ناجائز بھی ہو، نااہل اور نالائق بھی ہو اور عوام ایک کرب میں مبتلا ہوں، نہ اسے عوام کی نمائندہ حکومت کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی عوام کی توقعات پر پورا اتر سکی ہے۔ مہنگائی نے عام آدمی اور غریب آدمی کی کمر توڑ دی ہے۔ آج بھی اسلام آباد میں سرکاری ملازمین کا بہت بڑا مظاہرہ ہے جو کل سے جاری ہے اور آج ان پر تشدد بھی کیا گیا ہے، جس کے ہم بھرپور الفاظ میں مذمت بھی کرتے ہیں اور ہم ان کے مطالبات کی بھرپور حمایت بھی کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اب یہ کاروان چل پڑا ہے، آزادی کا کاروان ہے، ملک میں آئین کی بالادستی کا کاروان ہے، عوام کی حقیقی نمائندہ حکومت کے قیام کے لیے ایک سفر کا آغاز قومی سطح پر کیا جا رہا ہے، جس میں تمام سیاسی جماعتوں کی اعلیٰ قیادت شریک ہوگی اور متحدہ ہمارے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی طرف سے، PDM کی طرف سے پورے ملک میں جلسوں، مظاہروں اور عظیم الشان اجتماعات کا ایک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ میں تو سمجھتا ہوں کہ پہلے ہی 2-3 جلسوں میں ملک کے اندر ایک تبدیلی کے احساسات اور اثرات پیدا ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم نے بھرپور فیصلہ کیا ہے اور پورے صوبے کی جماعت، پورے ملک کی جماعتیں اور عوام ان جلسوں کی کامیابی کے لیے منتظر ہیں۔ مولانا صاحب PDM کے یہ بتائیے گا کہ آپ ڈے فرسٹ سے پہلے دن سے 25 جولائی سے اس پارلیمنٹ کے خلاف تھے کہ یہ عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اپنی 2 تقریروں کے بعد اس حد تک نظریاتی ہو چکے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ براہ راست آمنے سامنے کو تیار ہے؟ اور اسی کے ساتھ دوسرا سوال یہ کہ کس حد تک آپ کو یہ مینڈیٹ دیا ہے تمام جماعتوں نے کہ اگر کسی سطح پر استعفے دینے کا معاملہ آئے تو PDM اسی طرح یونائٹڈ ہو کے اکٹھا جائے گا؟ دیکھیے، ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ سیاسی لوگ، پارلیمانی اور جمہوری لوگ وہ اداروں سے تصادم کی بات کرتے ہیں۔ اداروں سے تصادم کا کوئی تصور نہیں ہے، ہم اداروں کے استحکام کے قائل ہیں، لیکن آئین کے تحت دیے ہوئے دائرۂ کار کے تحت اپنے کردار کو محدود کرنے کی بات کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی ادارہ اپنے حدود سے تجاوز کرتا ہے اور ملک کی سیاست پر اثر انداز ہوتا ہے تو یہ خود ان کے حلف کی بھی مخالفت ہے، ان کے اپنی ادارے کی کمزوری کا سبب بھی بنتا ہے، اور پھر ظاہر ہے جس کے ساتھ پاکستان کا دفاع وابستہ ہو وہ تو ہر شہری کے لیے ایک حساس ادارہ بن جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے
जो शिकायतें सामने आई हैं वो शिकायतें जेन्युइन हैं और उसको हमें बाकायदा दलील की बुनियाद पर ठंडे दिल के साथ सोचना चाहिए कि मुल्क कैसे चल सकता है। और जहाँ तक इस्तीफ़ों की बात है, ये हमारे मुत्तफ़िक़ा जो ऑप्शंस हैं उसका हिस्सा है और आने वाले वक्त में इसको इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकेगा। हमें बिल आखिर इन ऐवानों के बारे में एक कतई फैसले की तरफ जाना होगा। मौलाना साहब, बतौर पीडीएम के सरबराह के आप पहली बार आज जाती उमराह जा रहे हैं और उनके डेलीगेशन से जो है वो मुलाकात करने जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनके खिलाफ हालिया दिनों में 10 जिनसे आपकी मुलाकात है 10 अफराद से उन पर गद्दारी का मुकदमा कायम है। ये मुल्क में क्या किसने गद्दारी का केस किया है? थाना शादरा में जो खुद गद्दार हैं, जिनके खिलाफ गद्दारी के फैसले हो चुके हैं और जो अदालतों में पेश होने के लिए तैयार नहीं हैं, जिसमें 3 जनरल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, जिसमें आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर हैं। इस किस्म के हथकंडे आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इंडिया के एजेंट नहीं बनते। जब आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के खिलाफ गद्दारी का केस आप करेंगे, उसका क्या मैसेज जाएगा? लिहाजा ये कोई मुकदमा नहीं है। हम ऐसे मुकदमात को जूते के नोक पर रखते हैं। हम इनका मुकाबला करेंगे। गद्दार वो हैं जिन्होंने धांधली की है। गद्दार वो हैं जो अवाम के मैंडेट के बगैर कौम पर मुसल्लत हैं। गद्दार वो हैं कि जिसके खिलाफ फैसले आए और फिर अदालती कमीशन तहलील कर दिए गए। लिहाजा इस हवाले से जंग न छेड़ी जाए। हम ऐसे जंग में लड़ने के बड़े आदी हैं और हम मुल्क को इस हद तक नहीं ले जाना चाहते। हमेशा हमें कहा जाता है कि जी आप इंतहा तक न जाएं। हम बिल्कुल इंतहा तक नहीं जा रहे। हम आइन के हुदूद के अंदर जा रहे हैं, लेकिन कोई दूसरा इदारा भी आइन के हुदूद से आगे न जाए, इंतहा पसंदी की तरफ न जाए। अगर पीपल्स पार्टी ने रास्ते में आपका साथ छोड़ दिया और चौधरी शुजात हुसैन साहब भी आपके पास ना आए, तो इस तरीके का मुस्तबिल क्या होगा? इस अगर की कोई हैसियत नहीं है। अच्छा मौलाना साहब बताइएगा, थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा। जो मौजूदा अस्करी क़यादत है, मैं रिपीट कर देता हूँ, जो मौजूदा अस्करी क़यादत है बतौर पीडीए के सरबराह, आप मौजूदा अस्करी क़यादत के खिलाफ हैं या अदारे के? ये आज क्लियर कर दें ताकि कौम को भी समझ आ जाए कि मामला ख़राब हुआ कहाँ है। और इमरान खान तो एक मायने नहीं रखते बतौर नवाज शरीफ, ज़रा क्लियर कर। ये बात तो जिस तरह आप कह रहे हैं उसी तरह वाज़ेह है, लेकिन सवाल खत्म हो गए। अगला सवाल। ये फरमाइएगा कि इमरान खान ने कहा है कि पीडीएम में जितनी जमातें हैं हमें उनसे खौफ नहीं है, मुल्क में ना तब्दीली आएगी ना हुकूमत जाएगी। उसके पसीने छूटे हुए हैं, आपको पता नहीं है। मौलाना साहब और नवाज शरीफ, ये दोनों जो बड़ी जमातें हैं उनके कायदीन हैं। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की जो कमी है वो कितनी महसूस होगी और इस हवाले से आप उसको सोच विचार की है कि उनकी जो पार्टी, हम उनकी क़यादत को पैगाम देना चाहते हैं कि आप जिस मुश्किल में भी हैं, इंशाअल्लाह सड़कों पर अवाम में हम आपकी कमी महसूस नहीं होने देंगे। मौलाना साहब ये बताइएगा कि नवाज शरीफ ने कहा कि मुझसे DGISI ने इस्तीफ़ा मांगा था, वही सवाल इमरान खान से किया गया अगर आपसे इस्तीफ़ा मांगते तो आप क्या करोगे? मैं तो उसे फारग कर देता। क्या आप समझते हैं कि नवाज शरीफ को भी उस वक्त कोई इस तरह बोल्ड स्टेप लेना चाहिए था? मेरे ख्याल में मुझे चूँकि इन हुकूमती उमूर और मामलात से न तो कोई वाबस्तगी रही है, उन्होंने जो बात की है जिनसे मुताल्लिक़ है वो खुद उसकी वज़ाहत करें। अच्छा मौलाना साहब ये बताइएगा, जिससे पहले धरना आपने इस्लामाबाद के अंदर दिया और आपको मुख्तलिफ किस्म के लॉलीपॉप दे के वहाँ से उठा दिया गया, क्या इस तरह के आपको इम्कानात हैं? हमारे प्लानिंग में है कि हम इस्लामाबाद जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, आप अदनान मलिक साहब, हुकूमत जाएगी या नहीं जाएगी? एक सेकंड। तमाम अपोजिशन की और आवाम की नज़रें आप पर हैं, तो आपके ऊपर हुकूमत की जानब से जो एक केस भी नया में बना दिया गया, क्या आपने इमरान खान को कोई प्लाट वो वक्त से पहले जायदाद कहाँ लेके वो वक्त से पहले हमने उड़ा दिया है। अदनान मलिक साहब, ये सर हुकूमत नवंबर में जा रही है, दिसंबर में जा रही है? एक सेकंड जी, तरतीब से। तो हमेशा दिए जाते हैं। अदनान मलिक साहब, गैरतमंद लोग इस्तीफे देते हैं और कमजोर लोगों से इस्तीफे लिए जाते हैं। एक सेकंड जी, अदनान मौलाना साहब, कहते हैं कि मोमिन एक सुराग से दूसरी दफा नहीं डसना चाहते, तो आप फिर इनके झांसे में आ गए। ट्राई अगेन। हुकूमत नवंबर में जा रही है, दिसंबर में जा रही है? एक सवाल, आप वज़ीर-ए-आज़म हो